اگر جلد امن معاہدہ نہ ہوا تو یہ ایران کے لیے بہت برا ہوگا، صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ فرانسیسی نشریاتی ادارے کو ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے مفاد میں ہے کہ وہ معاہدے تک پہنچے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نئے مذاکرات کی خواہش کے پیغامات موصول ہوئے ہیں، تاہم واشنگٹن کے حقیقی ارادوں پر اب بھی عدم اعتماد برقرار ہے۔ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ اجلاس پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کراچی میں طلب کیا گیا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل اور ڈسٹرکٹ رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی اسی شام اپنے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوں گے۔ چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کلیدی کردار کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی۔ امریکی رکن کانگریس کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نام تعریفی خط۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے مخلصانہ تشکر اور دائمی قدردانی کا اظہار۔ کانگریشنل پاکستان کاکس کے شریک چیئرمین نے کہا کہ پاکستان کا امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا حقیقی سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے۔ فریقین کے درمیان جاری امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی مشکور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیر پا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم دورہ پر ایران پہنچ گئے۔ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے محسن نقوی کا والہانہ استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں میں امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ تنازع کے حل کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ بھارت میں جاری برکس گروپ کے رکن ممالک ایران اور متحدہ عرب امارات کے باہمی اختلافات کے باعث برکس وزرائے خارجہ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے میں بھی ناکامی ہوئی۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق نئی دلی میں ہونے والے اجلاس کے اختتام پر میزبان ملک بھارت نے مشترکہ بیان کی بجائے ایک صدارتی اعلامیہ جاری کیا، جس میں اختلافات کی نشاندہی کی گئی۔ ایران نے ابھرتی ہوئی معیشتوں کے اتحاد برکس سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی مذمت کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پریس کانفرنس کے دوران کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ برکس کے ایک رکن نے بیان کے بعض حصوں کو روکا۔ ہمارا اس ملک سے کوئی اختلاف نہیں، وہ موجودہ جنگ میں ہمارا ہدف نہیں تھا، جبکہ متحدہ عرب امارات نے کہا کہ وہ الزام یا دھمکی کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران پر امریکی حملوں کے خلاف اخلاقی موقف اختیار کرنے پر کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا شکریہ ادا کیا۔ پوپ لیو نے حملوں کے خلاف منصفانہ اور منطقی موقف اپنایا۔ یہ حملے جھوٹے بہانوں کے تحت کیے گئے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ امریکی اسرائیلی کارروائیاں جاری مذاکرات کے دوران ہوئیں۔ ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیانات خطرناک اور شرمناک ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات طاقت کے غلط تصور اور جارحانہ رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیاں نہ صرف ایران بلکہ عالمی قوانین کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے والے ہی ابنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال اور معاشی اثرات کے ذمہ دار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اراوانی کا خصوصی اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ ایک سال سے بھی کم عرصے میں ایران کو 2 غیر قانونی جارحانہ اقدامات کا سامنا کرنا پڑا، جو UN چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھے۔ اس کے اثرات فوجی کارروائیوں کے خاتمے کے بعد بھی برقرار رہیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن 19 اور 20 مئی کو چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ روسی صدارتی دفتر کے مطابق یہ دورہ روس اور چین کے درمیان معاہدہ حسن ہمسائیگی اور دوستانہ تعاون کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر کیا جا رہا ہے، جو دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ دورے کے دوران دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات، جامع شراکت داری اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو معاشی نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ انتخاب کی قیمت امریکی عوام کو بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کی صورت میں چکانا پڑے گی۔ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکی ٹریجری بانڈ کی شرح منافع میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مالیاتی حالات مزید سخت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 سالہ، 10 سالہ اور 30 سالہ بانڈز ییلڈز میں اضافہ قرضوں، ہاؤسنگ مارگیج اور صارفین کے قرضوں پر دباؤ بڑھا دے گا۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور گھریلو مالی مشکلات مزید شدت اختیار کریں گی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ یہ تمام صورتحال قابل گریز تھیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کیے جانے کے بعد خطے میں کشیدگی اور عالمی معاشی دباؤ بڑھ گیا ہے۔
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार की उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा बख्तियार सईदोव से टेलीफोनी गुफ्तगू। दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में पाक उज्बेक ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा और कसीरुल जहती अमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उज्बेक वजीर खारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सालसी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल और गैस की तरसील के लिए आलमी आबी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज पर इन्हिसार कम करने के लिए नए वेस्ट ईस्ट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे पर काम तेज कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अबूधाबी के वली अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद उन नहान ने कौमी नेशनल कंपनी के नए वेस्ट ईस्ट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे की तकमील जल्द यकीनी बनाई जाए। उन्होंने मजीद बताया कि इस मंसूबे की तकमील से 2027 तक फजीरा के रास्ते तेल बरामद करने की सलाहियत दुगनी की जा सके। इस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को आबनाए हुर्मुज का मुतबादिल मिल जाएगा। गजा में मुनसिफाना और पायदार अमन की वाहिद काबिल अमल राह फलस्तीनी अवाम के जायज हकूक की तकमील है। पाकिस्तान का योम नुकबा पर फलस्तीनी अवाम और उनके हक खुद इरादियत, आज़ादी और वक़ार के लिए मुनसिफाना जदोजहद के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने CEIRPP के खसूसी इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 1967 से कबल की सरहदों की बुनियाद पर एक आज़ाद, खुद मुख्तार और जुग्राफियाई तौर पर मुस्तकिल फलस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल शरीफ हो, उसका क़याम नागुज़ीर है। 78 बरस कबल 7,50,000 से ज़ायद फलस्तीनियों को जबरदस्ती उनके घरों से बेदखल और बेवतन कर दिया गया। भारतीय खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रा के साबिक सरफरा AS दिल्लत ने इतराफ किया कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो गया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियां पुरानी हो चुकी। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अब ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करवा रहा है। ये किरदार भारत को निभाना चाहिए था। AS दिल्लत का कहना था कि मसला कश्मीर बातचीत से ही हल होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत कभी नहीं रुकनी चाहिए। कोकेन क्वीन मुनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ। मुलजिमा पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। दूसरी जानिब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने कत्ल केस में मुलजिमा पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तोसीह कर दी। मुलजिमा को पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने जिला जुनूबी के दीगर 13 मुकदमात में मुलजिमा का जुडिशियल रिमांड दे दिया। इधर मलीर की अदालत ने सच्चल थाने के केस में अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर से 14 रोज में चालान तलब। मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की कराची अदालत में पेशी। कोकेन क्वीन को चेहरा डांप कर सख्त सिक्योरिटी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पिंकी ने अदालत पेशी के दौरान शोर शराबा किया और कहा कि मुझे 22 दिन से उठाया हुआ है। लाहौर से गिरफ्तार करके वैन में लाया गया। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। पिंकी ने इल्जाम लगाया कि मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। इस मौके पर अदालत ने मुलजिमा को यकीन दहानी कराई कि अदालत में आपको कोई हरासा नहीं कर सकता। आपका और आपके वकील का मुकम्मल मौक़िफ़ सुना जाएगा। अनमोल उर्फ पिंकी ने अदालत में कहा, मेरे खिलाफ 20 से 25 पर्चे डाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सब कुछ कबूल करे वरना आपकी फैमिली को उठाकर ले जाएंगे। मुझ पर जोर जबरदस्ती से लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। मुलजिमा पिंकी का कहना था कि मुझसे कहा जा रहा है जो हम नाम बता रहे हैं उन सब का नाम लो। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के जिला केच में दहशत गर्दी वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाने देंगे। हुकूमत मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद लेडी कांस्टेबल शकीला को खराज अकीदत। कहा, बलोचिस्तान की बहादुर बेटी ने फर्ज की अदायगी के दौरान वतन अजीज पर अपनी जान कुर्बान करके अजीम मिसाल कायम की। लेडी कांस्टेबल शकीला ने शहादत का बुलंद रुतबा हासिल किया और अपनी जान का नजराना किया। उन्होंने कहा, शहीद लेडी कांस्टेबल शकीला की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम पेशरफ। चीन समेत आलमी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का निजाम मजीद तेज। वफाकी हुकूमत ने SIFC को बाख्तियार बनाने का फैसला कर लिया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को SIFC में जिम किया जाएगा। इंजमाम का अमल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 23 मई को मुतवक्के दौरा चीन से कबल मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। SIFC को स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रेगुलेटरी इस्लाहात और सरमायाकारी सहूलतकारी के लिए जामे रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी, अरकान की तादाद आईनी हद से तजावुज कर गई। 6 नए वज़रा, 4 नए मुशीरों और 8 नए मुआवने खुसूसी काबीना में शामिल, जिसके बाद काबीना का हुज्म 14 से बढ़कर 31 हो गया। आइन में वज़रा की हद 15 और मुशीरों की तादाद 5 मुकर्रर की गई है। 6 नए वज़रा में नज़ीर अहमद अब्बासी, शकील अहमद, मोहम्मद अदनान कादरी, मोहम्मद आरिफ अहमद ज़ई, तारक महमूद आर्यानी शामिल। 4 नए मुशीरों में पीर मुसव्वर खान, लियाकत अली खान, हुमायूं खान और मियां मोहम्मद उमर शामिल हैं। 28वीं तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे। पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे, सिग्नल मौसूल होगा तो फिर रहनुमाई और मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम मखलूत हुकूमत हैं, आईनी तरमीम मुशावरत के बगैर कैसे कर सकते हैं। इत्तफाक़ी राय के बगैर आईनी तरमीम पर प्रोसेस नहीं होगा। अभी कुछ वाज़ेह नहीं, ड्राफ्ट बनने पर तरमीम के खतुखाल वाज़ेह होंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वफाक को चलाने के लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं। MQM के साथी कहते हैं कि मुकामी हुकूमत को मजबूत किया जाए। जो तजवीज़ वो लाए, वज़ीर आज़म ने इस पर इत्तफाक़ी राय पैदा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। वज़ीर आज़म हुकूमत में हैं, सदर दूसरी बड़ी जमात से हैं। सदर और वज़ीर आज़म बैठेंगे तो मुशावरत आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियां काबिल फख्र हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गजर कैंपस में वज़ीर आज़म लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों की फलाह व बहबूद अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना चाहते हैं। अमीर मुकाम ने कहा वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम नौजवानों को जदीद तालीम से आरास्ता करने का अहम कदम है। लैपटॉप स्कीम रोशन और खुद इंसार पाकिस्तान की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अज़रबैजान पहुंच गयी। बाकू पहुंचने पर वज़ीर आला का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। बाकू एयरपोर्ट पर डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री मिस्टर मेहमान बोकसोफ ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में अज़रबैजानी सफीर खिजर फरहादोफ और इनकी अहलिया, अज़रबैजान में पाकिस्तानी सफीर कासिम मोहिउद्दीन और उनकी अहलिया भी इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात शेड्यूल है। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी करेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल, अपनी छत अपना घर, वर्ल्ड अर्बन फोरम में पेश किया जाएगा। हुकूमत सिंध का कारोबारी बरादरी और अवाम को बड़ा रिलीफ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तमाम दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स को भी मुकर्रर बंदिश के औकात से मुस्तस्ना किया गया। कारोबारी मराकज अब साबका पाबंदियों के बगैर मामूल के मुताबिक अपने औकात का जारी रख सकेंगे। मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल के लिए मखसूस औकात तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत शुआरी पॉलिसी के तहत मुकर्रर किए गए थे। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फरोग, शहरी सहूलत और मुईशत के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। ताजरों, सनतकारों की तजावीज़ और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया। पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबारी मराकज अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। नोटिस में कहा गया कि बिजली की बचत के इकदाम पर बदस्तूर अमल किया जाएगा। गैर जरूरी और आराइशी रोशनियों के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। बलोचिस्तान के कारोबारी मराकज के लिए भी 1 जून तक लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। तमाम दुकानें, मॉल्स, रेस्टोरेंट और मार्केटें रात 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। दीगर इदारों में लॉकडाउन की पाबंदी बरकरार है।